اور آج پھر بلقیس کو وہ رات شدت سے یاد آ رہی تھی۔ اس رات بلقیس کو اس کے شوہر نے 3 بار دروازہ پینٹ کیا تھا اور شو صبح تک چلتا رہا۔ اپنی اس رات کو یاد کر کے بلقیس کی حالت بگڑنے لگی اور اس کا پورا جسم پسینے سے بھیگنے لگا، جبکہ پیاس کے مارے اس کا گلا بھی خشک ہو چکا تھا۔ بلقیس نے اپنی قمیض کے کونے کو اٹھا کر اپنا چہرہ صاف کیا، پھر دوسرے بستر پر سوئی ہوئی اپنی امی کی طرف دیکھ کر وہ یہ اطمینان کرنے لگی کہ واقعی اس کی امی سو چکی ہیں یا نہیں۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی کی وجہ سے اس کو نظر آیا کہ اس کی امی واقعی دوسری طرف کروٹ بدل کے سو رہی ہیں۔ تو بلقیس نے پہلے تو اپنے دونوں ہاتھوں سے بلندوں کو ہلکا ہلکا دبانا شروع کیا، پھر تھوڑی دیر بعد بلقیس نے اپنا ایک ہاتھ آہستہ آہستہ نیچے لے جا کر نیچے والے باز کے اندر کیے اور اپنے ہاتھ سے اپنا دروازہ پینٹ کرنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی بلقیس کی حالت بہت بگڑ چکی تھی۔ بلقیس کے ہاتھ کی سپیڈ آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھی۔ بلقیس کے دماغ میں شادی کے دنوں کے وہ سارے منظر گھومنے لگے جب اس کا شوہر اس کا مختلف طریقوں سے دروازہ پینٹ کرتا تھا۔ اپنے شوہر کا چھوٹو میاں بلقیس کو بہت یاد آ رہا تھا۔ جذبات میں پہلے کربل کی اپنے ہوش کھو بیٹھی۔ اسے یہ یاد ہی نہ رہا کہ اس کے ساتھ کمرے میں اس کی امی بھی سو رہی ہیں۔ اس کے منہ سے عجیب عجیب آوازیں نکل رہی تھیں، جن کو سن کر کمرے کی دوسری طرف سوتی ہوئی بلقیس کی امی رضیہ بی بی کی آنکھ اچانک کھل گئی۔ پہلے تو رضیہ بی بی کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس قسم کی آوازیں اس کے کانوں میں سنائی دے رہی ہیں۔ پھر جب اس کی آنکھیں کمرے کی ہلکی روشنی میں دیکھنے کے قابل ہوئی تو اس نے اپنی بیٹی بلقیس کا نچلے حصے پر پڑی چادر کو تیزی سے اوپر نیچے ہوتے دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ رضیہ بی بی خود بیوہ کی زندگی گزار رہی تھی، اس لیے وہ اپنی بیٹی کی طرف دیکھتے اور کمرے میں آتی آوازوں کو سن کر فوراً سمجھ گئیں کہ اس وقت اس کی بیٹی بلقیس کس قسم کا کھیل کھیلنے میں مصروف ہے۔ پھر رضیہ کے دیکھتے ہی دیکھتے بلقیس پرسکون ہو گئی۔ بلقیس کی امی نے اپنی بیٹی کو دیکھ تو لیا تھا، مگر وہ یہ بات سوچ کر چپ ہو گئی کہ آخر جوان بیٹی کے بھی جذبات ہیں اور اپنے شوہر سے طلاق کے بعد اپنے مچلتے جذبات کو بھجانے کے لیے اب بلقیس کر بھی کیا سکتی تھی۔ یہی بات سوچ کر رضیہ بی بی نے کروٹ بدلی اور پھر سے سونے کے جتن کرنے لگے۔ ادھر اپنی امی کے جاگ جانے سے بے خبر بلقیس نے سکون کی سانس لی اور اپنے ہاتھ کو باہر نکال کر نیند میں چلی گئی۔ دوسرے دن زاہد کو ایک کیس کے سلسلے میں راولپنڈی کی ہائی کورٹ میں اپنا بیان ریکارڈ کروانا تھا، اس لیے وہ اپنی امی اور بہن بلقیس کے اٹھنے سے پہلے ہی گھر سے نکل کر پنڈی چلا گیا۔ بلقیس صبح اٹھ کر اسکول جانے کے لیے تیار ہونے لگی، جبکہ اس کی امی نے ہاتھ منہ دھو کر اپنے اور بلقیس کے لیے ناشتہ تیار کرنا شروع کر دیا۔ ناشتے سے فارغ ہوتے ہی بلقیس کے کانوں میں اپنی اسکول وین کے ہارن کی آواز سنائی دی تو وہ جلدی سے امی کو خدا حافظ کہہ کر اسکول کے لیے نکل پڑی۔ اسکول پہنچ کر جو ہی بلقیس اسٹاف روم میں داخل ہوئی تو اس کا سامنا چیئر پر بیٹھی ہوئی ایک خوبصورت ٹیچر سے ہوا۔ بلقیس یہ ضرور جانتی تھی کہ یہ ٹیچر ابھی نئی اس کے اسکول میں آئی ہے، مگر اس ٹیچر سے ابھی تک بلقیس کا تعارف نہیں ہوا تھا۔ جب اس ٹیچر نے بلقیس کو اسٹاف روم میں داخل ہوتے دیکھا تو وہ اپنی چیئر سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بلقیس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی، السلام علیکم، میرا نام نیلوفر ہے اور میں آپ کے اسکول میں ابھی نئی آئی ہوں۔ جی ہاں ریڈرز، یہ ٹیچر وہ ہیں نیلوفر تھیں جن کو ایک دن پہلے اسے زاہد نے اپنے ہی بھائی کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ چونکہ نیلوفر نے اسے صبح زاہد کو اس کی بہن بلقیس کے ساتھ اسکول کے گیٹ پر دیکھا ہوا تھا، اس لیے وہ الکوثر ہوٹل کے روم میں زاہد کو دیکھ کر چونکی تھی۔ بلقیس، وعلیکم السلام، آپ سے مل کر خوشی ہوئی، یہ کہہ کر بلقیس نے بھی اپنا تعارف کروایا اور پھر وہ دونوں اپنی اپنی کلاس کو اٹینڈ کرنے نکل گئیں۔
नीलोफर ने अपनी क्लास के स्टूडेंट को पढ़ने के लिए सबक दिया और खुद सीट पर बैठकर कुछ सोचने लगी। इसके बावजूद कि नीलोफर ने कल 2 लोगों से एक साथ करवा के जिंदगी का एक नया मजा लूटा था, मगर फिर भी नीलोफर को इसी जाहिद की वजह से इस तरह रंगे हाथों पकड़े जाने और फिर यूं पिछला दरवाजा तोड़वाने का बहुत रंज हुआ था। अब जबकि एक बार के बाद इसी जाहिद ने इसको दोबारा अपने पास आने का कह दिया था, तो अब नीलोफर को ये डर लग गया था कि वो न जाने कब तक जाहिद के हाथों ब्लैकमेल होती रहेगी। इसलिए वो अब ये सोचने पर मजबूर हो गई कि किस तरह जल्द अज जल्द वो कोई ऐसी राह निकाल ले जिसकी वजह से जाहिद इन दोनों बहन भाई की जान छोड़ दे। सोचते सोचते नीलोफर को एक प्लान जहन में आया और इसको सोचकर वो खुद ब खुद ही मुस्कुराने लगी। फिर इस दिन घर जाकर नीलोफर ने अपने भाई जमशेद को बुलाया और इसको अपना सारा प्लान बता दिया। जमशेद भी ये जानता था कि अगर वो चुप रहे तो जाहिद इनको हमेशा किसी न किसी तरीके से ब्लैकमेल करता रहेगा। इसलिए अपनी बहन का प्लान सुनकर इसे भी यकीन हो गया कि अगर इनकी किस्मत ने साथ दिया तो वो जाहिद से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इधर पिंडी में कोर्ट से फारिग होकर जाहिद सदर बाजार चला आया। कल इसका मोबाइल फोन इसके हाथ से गिरकर टूट जाने की वजह से इसके पास अब कोई फोन नहीं था, इसलिए जाहिद ने एक नया मोबाइल फोन खरीदने का इरादा किया। आजकल स्मार्टफोन मार्केट में आ जाने की वजह से हर दूसरा आदमी इस किस्म के फोन्स का दीवाना बना नजर आता है, और जो लोग आईफोन या सैमसंग गैलेक्सी अफोर्ड नहीं कर सकते, इनके लिए कई तरह के दूसरे ब्रांड के स्मार्टफोन्स मार्केट में दस्तयाब हैं। इसलिए क्यू मोबाइल के नए मॉडल की डुअल सिम वाले 2 स्मार्टफोन खरीद लिए। एक फोन जाहिद अपने लिए खरीदा और दूसरा इसने अपनी बहन बिल्किस को तोहफे में देने के इरादे से खरीद लिया। फिर जाहिद ने अपनी अम्मी के लिए भी कुछ शलवार कमीज सूट खरीदे और जेहलम वापस आने के लिए फ्लाइंग कोच में बैठ गया। जेहलम वापसी के सफर के दौरान जाहिद फिर से नीलोफर और इसके भाई के ताल्लुकात के बारे में सोचने लगा। जाहिद के दिल में ख्याल आया कि ये कैसे मुमकिन है कि एक सगा भाई अपने जज्बात के हाथों मजबूर होकर अपनी ही बहन से ताल्लुकात कायम कर बैठे। यही बात सोचते कल शाम की तरह जाहिद का ध्यान दोबारा अपनी बहन बिल्किस की तरफ चला गया। मेरी बहन को तलाक हुए काफी टाइम हो चुका है, तो वो अब जज्बात को कैसे ठंडा करती होगी। जाहिद के जहन में कल वाला सवाल दोबारा फिर से गूंजा। नीलोफर को इसके भाई के साथ देखने के बाद जाहिद का छोटू भी अब आहिस्ता आहिस्ता जाहिद को इसकी बहन ही जानिब माइल करने की कोशिश कर रहा था, मगर जाहिद के दिलो दिमाग इस किस्म की गलत सोचों से बाज रहने की तलकीन कर रहे थे। इस कश्मकश में गिरफ्तार जाहिद कभी अपने छोटू की बात मान लेता और कभी अपने दिलो दिमाग की सुन लेता। मैं किस सोच में पड़ गया हूँ, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अपनी बहन के बारे में अपनी बहन का ख्याल जहन में आते ही जाहिद को एक धचका सा लगा और जाहिद ने अपने दिमाग से अपनी बहन के ख्याल निकालने की कोशिश करते हुए अपनी नजरों को रोड की तरफ लगा दिया, ताकि चलती वैन में से बाहर का नजारा देखते हुए इसकी सोच इसके काबू में आ जाए। मगर सियाने कहते हैं कि इंसान कभी अपनी सोचों पर काबू नहीं पा सकेगा। इससे जाहिद की सोच भी रह रहकर इसके दिमाग को इसकी बहन की तरफ करने पर तुली हुई थी। नीलोफर की तरह मेरी बहन भी प्यासी होगी, तो क्यों ना मैं भी अपनी ही बहन को फांसने की कोशिश करूं। जाहिद के जहन में पहली बार अपनी बहन के बारे में ये गंदा ख्याल आया। मुझे शर्म आनी चाहिए अपनी इस घटिया सोच पर। जमशेद ने जो कुछ अपनी बहन के साथ किया, इसका हिसाब वो खुद देगा। जो भी हो, आखिर बिल्किस मेरी बहन है और अपनी बहन के बारे में मेरा इस तरह सोचना भी एक गुनाह है। जाहिर ये बात सोचकर ही काम किया और फौरन ही इसके ज़मीर ने इसकी सोच पर मलामत करते हुए जाहिद को समझाया। आखिरकार जाहिद ने अपने दिमाग की बात मानते हुए अपने जहन को सुकून पहुंचाने के इरादे से वैन की विंडो के साथ टेक लगाकर अपनी आंखें बंद कर लीं।
शाम को घर पहुंचकर जाहिद ने अपनी अम्मी को इनके लाए हुए कपड़े देकर पूछा, अम्मी बिल्किस कहाँ है? वो अपने कमरे में लेटी हुई है बेटा। जाहिद के हाथों से अपने कपड़ों का बैग लेते हुए रजिया बीबी ने कहा, अच्छा मैं जाकर बिल्किस को उसका मोबाइल देता हूँ, आप इतनी देर में मेरे लिए खाना गर्म करें। कहते हुए जाहिद अपनी बहन के कमरे की तरफ गया। बिल्किस के कमरे का दरवाजा खुला ही था, इसलिए जाहिद सीधा अपनी बहन के कमरे में दाखिल हो गया। कमरे में बिल्किस उल्टी सोई हुई थी कि इसके पीछे से इसकी कमीज का कपड़ा कमरे में चलते हुए फैन की तेज हवा की वजह से उतर गया था। लेकिन बिल्किस इस बात से बेनियाज और बेखबर होकर सुकून की नींद सो रही थी। बिल्किस के इस अंदाज में लेटने की वजह से जाहिद को अपनी बहन बिल्किस का नजारा पहली बार देखने को मिल गया। अपनी बहन को इस हालत में सोता देखकर जाहिद को थोड़ी शर्म महसूस हुई, मगर चाहने के बावजूद जाहिद अपनी बहन से अपनी नजरें नहीं हटा पाया। अपनी बहन को देखकर जाहिद के मुंह से बेख्तियार निकल गया, वाह, चंद घंटे पहले वैन में आने वाले वो गंदे ख्यालात जिनको जाहिद ने बड़ी मुश्किल से अपने दिमाग से बाहर निकाला था, अपनी बहन को इस अंदाज में सोता देखकर वो ख्यालात फिर एकदम से जाहिद के सर पर सवार होने लगे। मेरा मजीद इधर रुकना सही नहीं, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। जाहिद को अपने दिल के अंदर से एक आवाज आई। जाहिद इधर से हटना चाहता था, मगर इसे लग रहा था जैसे इसके कदम नीचे से जमीन ने जकड़ लिए हैं, और कोशिश के बावजूद जाहिद अपनी जगह से हिल नहीं पाया। अभी जाहिद अपनी बहन की कयामत खेज गंद की गहरी वादियों में डूबा हुआ था कि बिल्किस ने हल्की सी हरकत की। पीछे से इसका नीचे वाला बाज थोड़ा नीचे हो गया। ये जाहिद के लिए एक जानलेवा लम्हा साबित हुआ, क्योंकि इसके भाई के सामने एक लम्हे के लिए पूरी आबोताब से अया हो गई थी। अपनी बहन की सांवली सामने देखकर ऊपर से जाहिद का मुंह पूरे का पूरा खुल गया, जबकि नीचे से छोटू मियां सर उठाने लगा। जाहिद यूं ही खड़ा नजारा करने में मशगूल था कि इतने में बिल्किस ने अपनी करवट बदली तो इसकी आंख खुल गई। बिल्किस ने जब अपने भाई को अपने बिस्तर के पास खड़ा देखा तो वो एकदम से बिस्तर से उठकर अपने बिखरे कपड़े दुरुस्त करने लगी और पास पड़े दुपट्टे से अपने आप को ढांपते हुए बोली, भाई आप और इस वक्त मेरे कमरे में? खैरियत? हाँ देखो, तुम्हारे लिए पिंडी से एक स्मार्टफोन लाया हूँ, वो तुमको देने इधर चला आया। ये कहते हुए जाहिद ने बिल्किस के लिए खरीदा हुआ मोबाइल फोन उसके हाथ में थमा दिया। जाहिद ने अपनी बहन की एकदम नींद से उठे देखा तो इसे घबरा गया, जैसे इसकी चोरी पकड़ी गई हो। बिल्किस को भी कुछ दिन से स्मार्टफोन लेने का शौक चढ़ा हुआ था। चूंकि स्मार्टफोन प्राइस में काफी महंगे थे, इसलिए वो चाहने के बावजूद अपनी अम्मी या भाई से नया स्मार्टफोन लेने का नहीं कह पाई। आज जब बिन कहे इसके भाई ने इसे एक बिल्कुल नए मॉडल का स्मार्टफोन खरीद दिया तो बिल्किस बेइंतहा खुश हुई, और इस खुशी के आलम में बिना सोचे समझे वो अपने भाई से चिमट गई। इस तरह अचानक और बेख्तियारी में जाहिद से भरपूर तरीके से चिमटने से बुलंद जाहिद से जा टकराए तो जाहिद के अंदर एक अजीब सी मस्ती की लहर दौड़ गई। जाहिद का दिल चाहा कि वो आज जमशेद की तरह अपनी बहन का दरवाजा पेंट कर दे, मगर जमशेद के निस्बत जाहिद के दिल में अभी कुछ शर्म बाकी थी। इसे जाहिद ने अपने दिल में जन्म लेते हुए ख्यालात को संभालते हुए परे किया और एक अच्छे भाई की तरह इसके कमरे से बाहर निकल आया। जाहिद इस लम्हे तो अपनी बहन बिल्किस से अलग होकर बाहर चला आया था, मगर हकीकत ये थी कि जमशेद की तरह अब जाहिद के अंदर भी ख्वाहिश भड़क उठी थी। इसलिए अब जाहिद तो कमरे से बाहर आ चुका था, लेकिन आज जैसे वो अपना दिल अपनी ही बहन के पास गिरवी रखाया था। मगर इस सब के बावजूद जाहिद ये बात अच्छी तरह जानता था कि चाहने के बावजूद ना तो कभी इसमें इतनी हिम्मत आएगी कि वो जमशेद की तरह बिल्किस पर हाथ डाले, और ना ही नीलोफर की तरह इसकी बहन बिल्किस कभी अपने भाई के हाथों पसंद करेगी। लेकिन इसके बावजूद कल और आज के पेश आने वाले सारे वाकयात के बायस जाहिद ने अब ये तय कर लिया था कि बेशक वो कभी कुछ ना कर पाए, लेकिन आज के बाद वो जहां तक मुमकिन हो सकेगा वो घर में रहकर वो अपनी बहन के नजारे जरूर करेगा, जिस पर वो एक घर में रहते हुए भी आज से पहले इसने कभी तवज्जो देना तो दूर
کبھی سوچنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ ادھر دوسری طرف نیلوفر اپنے پلان پر عمل درآمد کرنے پر پوری طرح تل گئی تھی۔ نیلوفر کا بھائی جمشید نیٹ ورکنگ، کمپیوٹر گرافکس اور فوٹوشاپ وغیرہ کا ماہر تھا۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔